हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जो 19th सेंचुरी में हुई थी। कुछ साइंटिस्ट के यहाँ मैंने लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। इसके बारे में आप 8, 9, 10 से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। एरिस्टोटल लाइफ स्पैन इसका 384 BC टू 322 BC है। ओके, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, दैट इज अ प्री जूलियन रोमन कैलेंडर विच इज प्रपोज्ड बाय जूलियस सीसर इन 146 BC। कब? 46 BC में। एंड दैट इज यूज्ड बाय रोमन किंगडम एंड इट हैविंग अप्रोक्सीमेटली 355 days. Now it is replaced by Georgian calendar and it is introduced in October 1582 which is having 365 days. That means 10 days extra that we are using right now. He specifically classified organism on the basis of their complexity, right? That is in structure and function into a hierarchy. So basically, his book is named as Historia Animalium, and he is also known as father of zoology, or father of biology, or father of embryology. And this is the most important scientist. अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की, दैट इज एंड्रेस वेजालियस। 1514 टू 1564 जो है इसका लाइफ स्पैन है, और ये बेल्जियन साइंटिस्ट है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ एनाटोमी। एनाटोमी क्या है? एनाटोमी दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एट of any organisms. Either does not mean it can be plant, animals, any one of them, right? So internal structure, that is anatomy. External appearance, that is morphology, right? So Andreas Vesalius जो है, he is known as the father of anatomy. He also wrote a book. And the book named is De Humani Corporis Fabrica. What is the name of the book? D का स्पेलिंग है DE Humani Corporis Fabrica. It means the structure of human body. क्या मतलब होता है? The structure of human body. Done. थर्ड साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज विलियम हार्वे। 1578 टू 1657। विलियम हार्वे 1578 टू 1657। स्पेसिफिकली ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ही इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, राइट? एनिमल के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, उसकी डिस्कवरी विलियम हार्वे की थी, राइट? His monograph was named as Anatomical Exercise on the Motion of the Heart and Blood. He wrote a monograph, एक statement टाइप, एक बुक लाइक, जैसे हम आर्टिकल कह सकते हैं उसको, 4 से 5 पेज का जो आता है ना, उस टाइप का। उसने किस टॉपिक पे लिखा? He wrote that on anatomical exercise on the motion of the heart and blood, right? And he discovered what? Blood circulation. So he is known as father of blood circulation. What? Father of blood circulation. Apart from that blood circulation के बाद he also studied reproduction development in chick. चिक के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, उसको भी उसने पढ़ा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज रॉबर्ट हुक। यू आर अवेयर अबाउट दिस साइंटिस्ट, आपने इसको सुना है, यू आर ऑलरेडी हेard it, right? Robert Hooke, that is from 1635 to 1703. He is a British scientist and he first coined the term celluli. Which term? Celluli. And what is the meaning of celluli? Cell. What is the meaning of celluli? The meaning is cell, which is structural and functional unit of our life, right? When? Year is 1665. How? By observing slice of cork under self-made simple microscope. That means he made simple microscope by their own, right? तो क्वेश्चन, स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन के रूप में आपको देखना है। स्टेटमेंट इज ही फर्स्ट coined the term, which term? Celluli.
What is the meaning of celluli? Cell. When? 1665, right? By observing slice of cork under self-made microscope, and that is simple microscope. Clear? Now, apart from that, he also write a book, and his book named as Micrographia. Note down the term. Book name is Micrographia, written by Robert Hooke. Right? He is a British scientist. Let's move toward the next one. You are also aware about this one. Next one, that is AVL, Antony van Leeuwenhoek. You have already learned about this scientist, right? That is Antony van Leeuwenhoek. The year, specific lifespan, that is 1632 to 1723. Specifically, he is a Dutch cloth merchant. Scientist तो वो बाद में बना. So before that, what? He is a Dutch cloth merchant, and after that he turned himself into a scientist. Now we are learning about Antony van Leeuwenhoek. You have already studied about the scientist in class 10th, right? Why? Because he invented a simple microscope, and you all are aware about microscope, right? You have already seen what is a microscope, how it works. You have already studied about the microscope, right? So he invented a simple microscope. For what purpose? To study the living cells, right? To study the living cells. So who discovered cells? Robert Hooke, the fourth scientist who discovered the cells, that is Robert Hooke. The year period 1635 to 1703, and he is a British scientist. Clear hai? From the 19th century era, almost 2 to 3 questions are there in NEET. If you take a question paper from last year, you will find 2 questions from this century, right? So this century is also most important. You have to remember this scientist. There are a lot of more scientists. I have only mentioned those which are important for you to remember. Clear? So talking about Antony van Leeuwenhoek, he invented a simple microscope, that you already know that. Why? Purpose kya tha? To study living cells. Clear? Now, apart from that, he also drew the diagram of bacteria. Why? Because he already invented the simple microscope, right? So he seen some kind of bacteria, so he drew the diagram of bacteria and studied them. The bacteria which he studied, that is named as Euglena. You are already aware about this bacteria, right? Euglena. Okay? Like apart from that, he has also drew some sketches about sperms, human sperms, blood cells, and a compound eyes of an insect. eyes की सॉरी इंसेक्ट की कंपाउंड आइज भी इसने ड्रॉ की हुई है. So this was about Antony van Leeuwenhoek. You are already knowing him. Our next scientist, I think you have already heard about this. That is Carlos Linus. Carlos Linus. The lifespan, that is 1707 to 1778, right? And he is a Swedish naturalist. He is a Swedish naturalist, right? Specifically, he published a specific book which is named as Species Plantarum. What is that? Species Plantarum, which is having approximately 6,000 species of plant. Students, remember, that is having approximately 6,000 species of plants, and it publication named as Species Plantarum. After that, he also wrote Systema Naturae. What? Systema Naturae, which is having 4,000 species of animals. तो आपने नोट किया, एनिमल का भी अलग है, प्लांट का भी अलग है. प्लांट 6,000 स्पीसीज का है, एनिमल 4,000 स्पीसीज का है. कब लिखा इसने? 1758 में. Here is also important. Here is also important. 1758 में. Apart from that, he also reported the famous nomenclature, that is binomial nomenclature. We will study about this nomenclature after this history. After this history, right? So he also reported binomial nomenclature. If I say about binomial nomenclature in two specific point, that binomial, bi means two, right? Binomial nomenclature means naming of specific plant or animal with only two words.
हमारा नाम कैसे दो शब्द का होता है, जैसे यहाँ आप लोगों ने जैसे जैसे कि जिन जो ने नाम लिखा ना, यू हैव रिटन योर नेम इन जस्ट 2 वर्ड, राइट, यू हैव रिटन योर नेम इन जस्ट 2 वर्ड्स, राइट, दैट इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. Before the discovery of binomial nomenclature, there are so many scientists who are writing the name like 15 words, in 15 words, 16 words, and the largest is 28. Largest is 28. So he specifically reported binomial nomenclature, and उसकी वजह से उसने पूरे जो भी प्लांट वगैरह थे उसके दो दो नाम कर दिए. क्लियर है? कैर्लोस लिनस. डोंट वरी, आपको जो हिस्ट्री 19th सेंचुरी की आप साइंटिस्ट को पढ़ोगे ना, बाकी सभी में कम साइंटिस्ट है. 21st जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे. क्लियर है? एनिमल बुक नेम. आगे बढ़ो 7th नंबर पे जीन बाप्टिस्ट लेमार्क. आप इसको लेमार्क के नाम से जानते हो, आई थिंक आपने सुना होगा लेमार्क. उसके ऊपर लेमार्किज्म था. आई थिंक 10th क्लास में आपने लेमार्किज्म और डार्विनिज्म पढ़ा था. रिमेंबर दैट? ओके, सो हु इज लेमार्क? लेमार्क कौन था? So basically Jean Baptiste Lamarck, that is from 1744 to 1829, that is the lifespan. He is a French naturalist. कौन था? French naturalist. So he was the first to discard the idea of fixity of species. पहला आइडिया उसने दिया about fixity of species. Why? He is specifically known for that. So he is the father of evolutionary theory. Evolutionary theory. किसका father है? Father of evolutionary theories. And he also write a book that is Philosophia Zoologic. The book named is Philosophia Zoologia. कब लिखी? 1809 में. कब लिखी? 1809 में. And he introduced the term biology. First time उसने term introduce किया, that is biology. किसने किया biology term? Jean Baptiste Lamarck. And who is the father of biology? That is the first scientist, Aristotle. Number 8, that is Robert Brown. Number 8 पे आ रहे हैं Robert Brown. 1773 to 1853. He discovered Brownian movement. He discovered Brownian movement in cytoplasm in 1828. Cytoplasm जो है, it's a jelly-like substance, fluid जैसा बने रहेगा. उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, राइट, लिपिड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. ये मूवमेंट किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. और रॉबर्ट ब्राउन और किसकी डिस्कवरी के लिए फेमस है? कम ऑन एवरीवन, आई नो यू नो दैट. आपको पता होगा इसके बारे में. रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक आपने पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा था, 9 में भी पढ़ चुके, 10th में भी पढ़ चुके. तो रॉबर्ट ब्राउन और एक डिस्कवरी के लिए जाना जाता है. डिस्कवर सेल. व्हाट? सेल डिस्कवर किया. सेल. बच्चे जो है ना यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का लेटर सभी का एक ही है बेटा. रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट नंबर 4, जो अभी लिस्ट दिख रहा ना, 4th पोजीशन पे जो रॉबर्ट हुक है ना, उसने सेल डिस्कवर किया. रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ और डिस्कवर किया था सेल के अंदर. व्हाट इज दैट? वेरी गुड, इट्स न्यूक्लियस. दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, राइट, जो उसने डिस्कवर्ड किया था. एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ द लैंग्वेज, राइट? हेलो. यस. बाउंस हो रहा है तो बता दीजिएगा बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आपको बता रहा हूं.
चलिए आगे बढ़ते हैं. सो रॉबर्ट हुक ब्राउन जो है discovered nucleus in the specific cell, right? Apart from that, number 9, that is Matthias Sladen and Swan, इसकी जोड़ी है. जैसे हमारे यहाँ जय और वीरू है, तो स्लेडन एंड स्वान स्पेसिफिकली स्लेडन जो है that is 1804 to 1881, और थियोडर स्वान जो है that is 1810 to 1882. ठीक है. जो स्लेडन है 9th नंबर पे जो साइंटिस्ट है मैथियास स्लेडन, ही इज अ जर्मन बोटानिस्ट. दोनों जर्मनी से बिलोंग करते हैं. पहला वाला बोटनिस्ट था, मतलब बोटनी के बारे में पढ़ाई करता था. सेकेंड वन जर्मनी से था लेकिन पढ़ाई एनिमल की करता था. सो ही इज अ जूलॉजिस्ट. मैथियास स्लेडन जो है ही प्रपोज स्लेडन एंड सोएन 9th और 10th नंबर के जो दोनों आखिरी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके सेल थ्योरी दी थी. क्या दी थी? सेल थ्योरी. He proposed the cell theory basically after studying the plant. सबसे पहले सेल थ्योरी मैथियस स्लेडन ने दी थी क्योंकि वो बोटानिस्ट था. उसने प्लांट सेल को पढ़ के एक सेल थ्योरी दी. उस सेल थ्योरी को स्वान ने दूसरे ही साल में चेंज किया एनिमल सेल को पढ़ के, और एक कॉम्बिनेशन में दोनों ने मिलके एक कॉमन सेल थ्योरी दी. लाइक कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नए सेल पुराने सेल से बनते हैं, जो प्लांट के लिए भी सही है और एनिमल के लिए भी सही है. साइंटिस्ट नंबर 11 ऑस्कार हार्टविग. ऑस्कार हार्टविग, that is from 1849 to 1902. It's 02. It's not 22, it's 02. So what he does, he studied the fusion of nuclei during fertilization. Fertilization, that means what? Fertilization is a kind of process. You have already learned about the fertilization in class 8 and 10th reproduction chapter में, right? So fertilization, that is, कौन बताएगा fertilization? Fusion of gametes. One is male and one is female. That is fusion of gamete, right? तो यह जो fertilization हो रहा था उसमें जो न्यूक्लियस है, right? उसका फ्यूजन किसने बताया? ऑस्कार हार्टविग ने. कब बताया? 1875 में. When? 1875. So he studies the fusion of nuclei during fertilization, and he also proposed a specific theory, that is protoplasmic theory. कौन सी? Protoplasmic theory. To elaborate hypothesis that protoplasm is the physical basis of life. लाइफ का फिजिकल बेसिस कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म मतलब प्लांट में होता है ना, एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज अ सेल. सेल के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, राइट? तो एक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. किसने बताया? ओ हार्टविग. क्लियर है? 12th नंबर डार्विन. पढ़ा है आपने, और जिराफ वाली गर्दन लंबी हो जाती है. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882. आपने इसको पढ़ा था क्लास 10th में. कौन से चैप्टर में पढ़ा था? याद है? 9. टाइटल क्या था? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. उसमें आपने इवोल्यूशन में पढ़ा था, राइट? So he is a British naturalist, British scientist है, and his book is The Origin of Species by Means of Natural Selection. बुक का नाम क्या है? Origin of Species by Natural Selection. ने ही published this book in 1859. Well, in 1859, and he is called Newton of biology. क्या कहते हैं उसको? Newton of biology. बायोलॉजी का न्यूटन कहते हैं डार्विन को. Why? Because he proposed the theory of pangenesis. Theory of pangenesis to explain the inheritance in the book, that is on the variation of animals and plants under domestication. 1868 में उसने ये एक्सप्लेन किया था. क्या? वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? एक वेराइटी नहीं, बहुत सारी वेराइटी मिल रही है, उसने एक्सप्लेन किया था. सो ही इज नोन एज न्यूटन ऑफ बायोलॉजी. दिस theory is theory of pangenesis, and he wrote a book, Origin of Species.
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो, शायद ये भी आपने सुना होगा। 1821 टू 1902, ईयर इज 1821 टू 1902। स्पेसिफिकली इन 1858, 1858 में उसने एक प्रपोज किया था स्टेटमेंट, दैट इज ओमनी सेल्युला इज सेल्युला। स्टेटमेंट थोड़ा अजीब है ना, याद भी रह जाएगा। इट्स he proposed the statement that omnis cellula e cellula, that means new cells arises from the pre-existing cells, new cells arise from pre-existing cells। उसने अपने लैंग्वेज में दिया, that is omnis cellulae cellula। Getting or not what I am saying? He proposed a specific term, that is omnis cellulae cellula, that means new cells arise from the pre-existing cells। नए सेल पुराने सेल से बन रहे हैं, उसी में से ही बन जाए। That is the third point and the most important point of the cell theory. But this point has an exception, and the exception is viruses। वायरसेस के लिए सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। वाई? वायरसेस जो है दे आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वायरस के पहले जो सेल्स होते हैं उसमें से नया वायरस नहीं बनता है। वाई? बिकॉज वायरसेस एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दैट इज इट कैन बी डीएनए और इट ऑल्सो पॉसिबल दैट इज आरएनए। डीएनए भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, right? Let's move toward the next one, that is 14 number scientist Louis Pasteur। You already know this scientist Louis Pasteur, I think you have heard that in class 8 also and in 10, specific for their discovery in disease and vaccine and all, and because he discovered the vaccine against anthrax, he discovered the vaccine against anthrax, that's why he is famous। Anthrax that is caused by a specific bacteria named as Bacillus anthracis। What is the name of the bacteria? Bacillus anthracis, जो cattle में मिलता है, and this bacteria causes anthrax। So this disease vaccine was discovered by Louis Pasteur। Apart from that, he established germ theory of disease। क्या उसने एस्टेब्लिश किया? जर्म थियरी ऑफ डिजीज। How he proved that? Specifically, he is a French scientist, and the lifespan that is 1822 to 1895. What is the lifespan? 1822 to 1895. He is a French scientist, and he proved that fermentation is caused by living organism। What he proved? He proved that fermentation is caused by living organism, and he exampled which living organism? That is yeast and bacteria। You all are aware about yeast, right? And bacteria, you have studied about yeast, budding in yeast, that is a type of reproduction, you have already studied this, right? Yeast is responsible for fermentation, right? Specifically when anaerobic condition arises, anaerobic condition matlab lack of oxygen, right? And that time yeast will convert the glucose molecule to pyruvate with the help of oxygen। After that, yeast will convert that pyruvate into alcohol in anaerobic condition। That's why yeast is we can say famous। I think if you know that market में yeast की ना tablets आती है छोटी, कुछ एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। लाइक गुजरात में जो खमन ढोकला बनता है ना, दैट इज ऑल्सो मेड विद हेल्प ऑफ ईस्ट। उसमें ईस्ट आता है। कुछ और भी ऐसे हेल्पफुल बैक्टीरिया है, स्पेसिफिकली ईस्ट जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। यूनिसेल्युलर है, इट इज अ स्पेसिफिक यूनिसेल्युलर, इट मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट लुइस पास्चर जो है, he is also proposed a specific sterilization technique। Sterilization मतलब killing of germs, and that technique is known as pasteurization। You all are aware about the pasteurization, that is heating up the milk at 60 to 65 degree temperature
for at least 30 minutes. That is named as pasteurization. Everyone clear? Pasteurization is the term proposed by Louis Pasteur, right? This is the most important scientist from this list. You can write is IMP. लिखते जाओ. This is the most important scientist from this list. Let's move toward the next one. That is scientist number 15, Ernst Haeckel, 1834 to 1919. What is the name? Ernst Haeckel. He introduced specific two kingdoms. Kingdom classification system अपने class 9th में पढ़ी है. You have studied that in class 9th, and the chapter is chapter number 7, right? Diversity in animals and plants. ऐसा कुछ था chapter जो आपने पढ़ा होगा, right? So he introduced two specific kingdom that is named as Monera and Protista. What named as Monera and Protista. He also coined and fully defined the term ecology. He termed the specific explanation. He gave the explanation about the term ecology. That means population and all. Environment study, population study, everything that is involved in ecology study. That is involved in study of ecology. Clear? Scientist number 16. Yes, You all aware about the scientist because you know about the scientist. What he does specifically, the name is Mendel. You are known him as Mendel. The full name is Georger Johann Mendel. He is an Austrian monk. Austrian monk है. The lifespan is 1822 and 1884. You are aware about this scientist. You have studied this in class 10 in heredity. He discovered principle of inheritance. What he has given? Principle of inheritance. After his work on a specific species of plant, do you remember that plant name on which he worked? pea plant. Pea plant. Very good. And what is the scientific name of pea plant? What is the scientific name? No issues. अगर नहीं याद है, it's okay. Now you have to remember the scientific name of peas. That is Pisum sativum. Pisum. Pisum, that is a genus. Sativum, that is a species. Sativum. Pisum sativum. And he published his work in 1866. So he discovered the principle of inheritance after his work and published them in 1866. And he worked on a specific plant, that is Pisum sativum. अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, this topic is specifically for genetics, right? So he worked on genes. That's why he is known as father of genetics. You know that he known as father of genetics. Okay, can anyone tell me why he choose Pisum sativum? कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया? उसने Pisum sativum ही लिया. भूल नहीं गए ना इतनी जल्दी? अभी पीछे ही है, 10th इतना दूर नहीं गया. अभी तो आपके पास उसकी टेक्स्ट बुक भी होगी 10th की. आपको बता दूं जेनेटिक्स के बारे में और मेंडल के वर्क के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में. So you should know the basic which comes in class 10th. He selected Pisum sativum, a garden pea. Why? Because it is easily available, easily reproducible, have so many type of different featured characteristics. Specifically, he choose for the time duration. The development time of Pisum sativum is very short if you are comparing with it to other plant. Let's move towards the next one. 17 number, that is August Weismann. Scientist named was August Weismann, that is from 1834 to 1914. He is a German biologist. He is a German biologist. जब हम लेमार्क पढ़ रहे थे तो आपने उसमें लेमार्किज्म की बात सुनी होगी, राइट?
आई एम टॉकिंग अबाउट जीन बाप्टिस्ट लेमार्क, साइंटिस्ट नंबर 7 फ्रॉम दिस लिस्ट। उसने लेमार्किज्म दिया था, राइट। उसका लेमार्किज्म थोड़ा सक्सेसफुल था, राइट। तो स्पेसिफिकली दिस साइंटिस्ट दैट इज ऑगस्ट वेजमैन रिजेक्टेड लेमार्क कॉन्सेप्ट। उसने लेमार्क के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। व्हाट वाज दैट? कौन सा कॉन्सेप्ट था? दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक ऑर्गेनिज्म के पास जो कैरेक्टर अक्वायर्ड है वो दूसरे में इनहेरिटेंस मतलब दूसरे में पास ऑन होते हैं। सो ही रिजेक्टेड दिस थियोरी ऑफ लेमार्क एंड डार्विन्स थियोरी ऑफ पैनजेनेसिस। डार्विन ने कौन सी थियोरी दी थी? पैनजेनेसिस। दैट बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मींस नेचुरल सिलेक्शन, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन सबको उसने रिजेक्ट किया। हाउ? विद द हेल्प ऑफ his own discovery, with the help of his own discovery, that is the theory of germplasm, which he was proposed in 1892। 1819 में उसने जो थियोरी दी ना, कौन सी? दैट इज थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्म। उसके अकॉर्डिंग उसने लेमार्क और डार्विन दोनों की थियोरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या किया? रिजेक्ट। नाउ ये जो थियोरी थी ना, द थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्म, क्या थी? उसने दे तो दी जर्म प्लाज्म के ऊपर जो थियोरी थी, दैट इज स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस की ही बात की थी उसने। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें इनहेरिटेंस कैसे होता है वो उसने ऐसा बताया था कि एक स्पेसिफिक जो जर्म सेल होता है ना, germ cells means I am talking about sperms in male and eggs in female. So he said that the inheritance of the trait or characters that is through only and only germ cell। मतलब स्पर्म या एग सेल ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर पास करने के लिए। ये थियोरी उसने प्रपोज की और इस थियोरी के आते ही लेमार्क की थियोरी दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और डार्विन की थियोरी पैनजेनेसिस रिजेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिजेक्ट, मतलब कि फेल हो गई। समझ में आया आप सबको? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस 17 साइंटिस्ट and they have discovered their discovery in 19th century or before the 19th century. So this is the important achievement or I can say discoveries which is made by scientists up to 19th century. Clear hai? Now it's time to discuss the important achievement that is in 20th century। अभी तक हम 19th सेंचुरी तक का सब कुछ पढ़ा। अब सिर्फ 20वीं सदी जो 20th सेंचुरी है उसमें क्या आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। That is important achievement made by scientists or biologists in 20th century। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है that is ह्यूगो डी राइस। ह्यूगो डी राइस ईयर इज, यहाँ जो इतने भी अब ईयर आप देखोगे ना बच्चों, राइट, वहां पर उसका लाइफ स्पान है। यहाँ लाइफ स्पान इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है उसकी डिस्कवरी का ईयर। तो यहाँ जो ईयर अब मेंशन करेंगे आएगा वो उसकी डिस्कवरी ईयर होगा। उस ईयर की वजह से वो साइंटिस्ट का लिस्ट यहाँ है और आप पढ़ रहे हो लाइक 1900। ये वो ईयर है जिस ईयर की डिस्कवरी की वजह से आप लोग इस साइंटिस्ट को पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? सो ह्यूगो डी राइस, अब इसने क्या किया था? कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हु ही इज अ डच जेनेटिस्ट था। कहां से बिलोंग कर रहा है? डच। सो ही रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ। उसने मेंडल के लॉ को वापस डिस्कवर्ड किया था विद अनदर साइंटिस्ट दैट इज नेम इज स्केमार्क। जर्मन साइंटिस्ट था। इसमें टी साइलेंट है, स्केमार्क। स्पेलिंग बोल रहा हूं आपको, TSCHERMAK। ही स्पेसिफिकली प्रपोज द थियोरी ऑफ म्यूटेशन। उसने थियोरी ऑफ म्यूटेशन दी थी। व्हाट इज द थियोरी ऑफ म्यूटेशन? स्पेसिफिकली व्हाट इज म्यूटेशन? अल्टरेशन इन जेनेटिक सीक्वेंस। जो डीएनए है उसके अंदर जो ATGC न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ना उसमें चेंज आ जाना। फॉर एग्जाम्पल द मेजर सीक्वेंस इज ATGC,
राइट, 4 लेटर, और वहां पर सेकेंड लेटर ए टी, टी जी से रिप्लेस हो जाए, दैट मीन्स ए जी जी सी, दैट इज म्यूटेशन, और उसकी वजह से पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। क्लियर है? सेकेंड, वॉल्टर सुटोन 1904 में डिस्कवर की थी। व्हाट ही डिस्कवर्ड द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी के अंदर उसने ये दिया था कि जो क्रोमोसोम है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होने के लिए। कब दिया? 1904 में। अमेरिकन जेनेटिस्ट है। थर्ड इज विलियम बैटसन, 1909 में उसने सबसे पहले जेनेटिक्स नाम का टर्म दिया। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है। 1909 he introduced the term genetics and discovered linkage। दो जिन के बीच में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कड़ी है, लिंक है, उस लिंकेज को डिस्कवर विलियम बैटसन ने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, अमेरिकन जेनेटिक्स से ये भी, राइट। इन 1910 he discovered sex linked inheritance। what he discovered? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस जो है वो फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन, फ्यूजन से हो रहा है, राइट, सेक्सुअल प्रोसेस से। किसने डिस्कवर किया? मॉर्गन ने। ही डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो और लिंकेज दोनों के बीच में रिलेशन है, ऐसा टी एच मॉर्गन ने बताया था। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? डू यू नो ओवरटेक, गाड़ी चलाते हैं, चलो चलो ओवरटेक करो इस गाड़ी को, ओवरटेक समझते हो? सेम टू सेम है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन यहां एक्सचेंज हो जाता है। जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना बच्चों, दो क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, पेयर बनाते हैं, और कुछ अपना पोर्शन दोनों सेम टाइम पे एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज। क्लियर है? जब सेम टाइम पे एक्सचेंज करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को जो है क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आप जानते ही हो, नाम सुना ही होगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ही इज अ स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, राइट। 1928 में उसने डिस्कवरी दी थी। स्पेसिफिकली पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए फेमस है। he discovered penicillin that is an antibiotic which is obtained from a fungi named as Penicillium notatum. What is the name? Penicillium notatum, which contaminated the culture of Staphylococcus bacteria। ये बाई चांस हुआ था, गड़बड़ी से हुआ था। एक ये साइंटिस्ट जो है काम कर रहे थे, छोटा सा किस्सा है। प्योर कल्चर था उसके पास। प्योर कल्चर मतलब क्या? एक पेट्री डिश में सिर्फ बैक्टीरिया था, दूसरे बैक्टीरिया नहीं, एक ही टाइप की बैक्टीरिया था, और नाम क्या था? स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम था? स्टेफाइलोकोकस। ये बैक्टीरिया का कल्चर था, इसके अलावा कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं था। सडनली फंजाई कहां से उसमें आ गई, उसको पता ही नहीं चला। सडनली उसने देखा कि स्टेफाइलोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है। स्क्रीन पे देखो, दिस इज पेट्री डिश। ये क्या है? एक पेट्री डिश है, गोल सर्कल फॉर्म, सर्कल वाली डिश होती है। इसमें न्यूट्रिएंट होता है, और इस न्यूट्रिएंट को खाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, अपने आप को ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, राइट। इसके अंदर जो कल्चर था, जो बैक्टीरिया था, वो था स्टेफाइलोकोकस। क्या था? स्टेफाइलोकोकस। ये जो मैं रेड डॉट बना रहा हूं, दैट इज स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो रहा था, राइट। सो नाउ व्हाट ही डज, उसने इसको ग्रो किया। इसके अंदर कहां से पता नहीं एक फंगस आ गई, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। कौन सी आई? पेनिसिलियम नोटाटम। देखो ये मैंने बनाया ब्लू कलर का। अब इस फंगस ने ऐसा कोई केमिकल छोड़ा जिसकी वजह से उसकी आसपास एक व्हाइट बैकग्राउंड बन गया, मतलब कि ब्लैंक एरिया, स्पेस, खाली जगह। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली कोई भी, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, खाली एरिया, राइट, इस सर्कल के अंदर का कोई भी बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट नहीं था। जबकि स्टेफाइलोकोकस जो है वो खतरनाक बैक्टीरिया है, तो उसको खुद कंफ्यूजन में आ गया, इतने खतरनाक बैक्टीरिया के आसपास ये कौन सा केमिकल सीक्रेट हुआ।
तो उसने स्टडी किया तो पता चला कि पेनिसिलियम मोटाटम नाम की ये फंजाई है जो पेनिसिलिन नाम का सब्सटेंस रिलीज कर रही है, और वो सब्सटेंस इस खतरनाक स्टेफाइलोकोकस को किल कर रहा है। ऐसे हुई डिस्कवरी किसकी? पेनिसिलिन की। किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन सबसे पहली डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक थी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें यूज हुई थी। कहाँ यूज हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 में। Let's move toward the next one. Scientist number 6, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आप पता है इसको किस नाम से जानते हो? जय वीरू की जोड़ी है, वॉटसन एंड क्रिक के नाम से जानते होंगे आप। सुना है नाम? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन जो है अमेरिकन साइंटिस्ट है, और क्रिक अमेरिकन है दोनों। उसने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फाइंड किया था। दे डिस्कवर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में। दैट्स व्हाई दे आर फेमस फॉर वॉटसन, सॉरी डीएनए डबल हेलिकल। इसकी भी एक स्टोरी है। एक टाइम पे वॉटसन एंड क्रिक दोनों मिलके रिसर्च कर रहे थे कि डीएनए कैसा दिखता है उसके ऊपर, और वो उसका 3D मॉडल लेबोरेटरी में बना रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक और लेडी है जिसका नाम है रोजालिन फ्रैंकलिन। सुना है नाम? रोजालिन फ्रैंकलिन नाम की लेडी थी, वो भी सेम काम कर रही थी। क्या? कि डीएनए कैसे दिखता है 3D मॉडल बना रही थी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम की टेक्निक यूज करके। सडनली एक दिन ये पता चला वॉटसन एंड क्रिक को कि रोजालिन फ्रैंकलिन ने डीएनए का मॉडल बना लिया। सारा डेटा उसने अपने कंप्यूटर पे सेव कर लिया। किसने बना लिया? रोजालिन फ्रैंकलिन नाम की लेडी ने। अब वो दूसरे दिन सुबह उसको पूरी दुनिया के सामने रखने वाली थी कि देखो डीएनए ऐसा दिखता है। और वॉटसन एंड क्रिक तो अभी भी अपनी खोज में बिजी थे। अब इन दोनों ने क्या किया, उस रात को, उस भयानक काली रात को, ये दोनों रोजालिन फ्रैंकलिन की लैब में घुसे, अंदर गए, और उस लेडी का जो डिस्कवरी का डेटा था ना, सारा उसने चुरा लिया, चुरा के अपनी लैब में आ गए। अब पहले से डीएनए के ऊपर काम तो करते थे, राइट? तो उसको पता ही था। अब उन्होंने उसी रात पूरा बैठ के डेटा पढ़ लिया, थीसिस बना ली, अपनी एक पूरी बुक बना ली। सुबह उठे वॉटसन क्रिक, सुबह होते ही इन दोनों ने, वो लेडी अपनी लेबोरेटरी में जाए उससे पहले ही डेटा को पब्लिक के सामने रख दिया। क्या कर दिया उसने? डिस्कवरी दे दी कि डीएनए ऐसा दिखता है। और वो जो लेडी थी ना, वो खुद शॉक हो गई जब उसने जाकर अपनी लैब देखी ना, तो वहां कुछ नहीं था। इसने क्या किया था? चोरी की थी, सिंपल वे में। अब साइंस जो है ये बिल्कुल नहीं मानता किसने खोज की। साइंस तो ये देखता है कि सबसे पहले पब्लिक के सामने रखा किसने। रखने वाले का नाम वॉटसन एंड क्रिक। उनसे कुछ सवाल किए गए जिसको हम वाइवा कहते हैं। ऑब्वियसली वाइवा देना पड़ता है। ऑब्वियसली वो काम कर रहे थे डीएनए के ऊपर, तो उसको पता ही होगा कि डीएनए क्या था, तो उन्होंने वो पास किया टेस्ट। तब से डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवरी में किसका नाम आता है? वॉटसन एंड क्रिक का, क्योंकि उन दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इस डिस्कवरी के लिए। अभी पिछले कुछ सालों में जब उसको एहसास हो गया कि नहीं हमने तो गलत किया था, तो उन दोनों ने अपना नोबेल प्राइज वापस कर दिया है, और पब्लिक के सामने बताया कि उसने क्या किया था, राइट? पब्लिक के सामने उसने बताया कि उसने क्या किया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको नोबेल प्राइज पहले मिल चुका था, राइट? दे गॉट द नोबेल प्राइज, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबेल प्राइज इज, जब किसी को एक बार नोबेल प्राइज मिल जाता है ना बच्चों, तो बस वो उसके लिए फेमस रहता है। क्लियर? वॉटसन क्रिक को ये डिस्कवरी मिली थी, इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो, राइट? वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट 7 नंबर, यस, ही इज आवर इंडियन साइंटिस्ट H.G. खुराना। अब तक कोई इंडियन नहीं आया था, पहला साइंटिस्ट इंडियन आया 20th सेंचुरी में, H.G. खुराना। 1968 में उसने क्या किया था? खुराना सिंथेसाइज्ड अ स्ट्रेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी स्ट्रेंज जो है बनाई थी लेबोरेटरी में। दिस इज द फर्स्ट मैन मेड जीन
जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एटीजीसी की सीक्वेंस, जिसमें कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं और ये नेचुरली बनती है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी में किसने बनाई? खुराना ने, इंडियन साइंटिस्ट है। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला है। अब इसने अकेले ने नहीं किया है, दूसरे दो साइंटिस्ट के साथ मिलके किया जो अमेरिका के थे। दूसरे दो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हॉली और मार्शल नाइगबर्ग। तो इन तीनों को इस डिस्कवरी के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज। जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस किया। क्या किया? जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, 1973 में ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट है। दे डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की थी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रेक थ्रू फॉर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, व्हाट इट इज, उसमें क्या किया जाता है? उसमें एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जाता है, उसमें से आरएनए बनाया जाता है और उसमें से फिर प्रोटीन बनाया जाता है। नेचुरली इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं करके, चेंज करके। एग्जाम्पल, बालों के कलर का जीन ब्लैक कलर है, बालों के कलर क्या है? बालों का कलर ब्लैक। तो ब्लैक कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बदल देंगे लाल वाले जीन से, तो नए बेबी में जो हेयर का कलर है वो क्या आएगा? रेड आएगा। दिस इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये 12th में आएगी, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, नेचर चीज को, राइट? दिस फील्ड इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। आपको दो चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, 12th में आएगा। Ninth scientist and the last one of this 20th century, इयान विल्मट एंड कैंपबेल, 1966 में। ये दोनों भी स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट है, स्पेसिफिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, मतलब दे आर स्टडी एम्ब्रियोज। आपने डोली सुना है? डोली नाम की एक शीप, इन दोनों ने उसी के ऊपर काम किया था। सो ही प्रोड्यूस द फर्स्ट लाइव क्लोन, क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, सीप का क्लोन बनाया और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? डॉली। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1990 में बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड 2001 में ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हुआ था विथ 25,000 to 30,000 जीन्स। ह्यूमन में क्या प्रोजेक्ट था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन की सारी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, राइट? इन दोनों ने इसमें हेल्प की और एक क्लोन बनाया, दैट इज डॉली। ये 20th सेंचुरी के 9 महानुभाव है, 9 साइंटिस्ट है। Important achievements made by scientists in 21st century. The first is एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो। पहले जो दो साइंटिस्ट है वो है एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो। 2006 की बात है, अमेरिकन है दोनों के दोनों, 2006 मतलब अभी जो सेंचुरी चल रही है, राइट? दे डिस्कवर आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग। उन्होंने आरएनए में जीन साइलेंसिंग की सीक्वेंस को डिस्कवर किया, प्रोसेस को। व्हाट इज आरएनए साइलेंसिंग? आरएनए जो है होता है ना बेटा, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं। कुछ जीन काम के यूजफुल होते हैं जिसमें से प्रोडक्ट बनता है, कुछ ऐसे ही जीन होते हैं कुछ काम के नहीं, सिर्फ जगह रोक रहे हैं, उसको कहते हैं फॉल्स इंट्रॉन्स कहते हैं। तो उसमें इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। तो इस इंट्रॉन का रिमूव करना, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, जीन एडिटिंग, आरएनए एडिटिंग, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को साइलेंट करना, उसमें से उस इनएक्टिवेटेड जीन को रिमूव करना, किसने डिस्कवर किया? एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो नाम के साइंटिस्ट ने 2006 में। और दे वर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज
इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। सेकंड की बात करते हैं, पॉल लेटरबर्ग एंड सर पीटर मैन्सफील्ड। पॉल लेटरबर्ग एंड सर पीटर मैन्सफील्ड 2003, फर्स्ट अमेरिकन एंड सेकंड ब्रिटिश। पहला जो है अमेरिका का है, दूसरा ब्रिटिश का है। उन्होंने क्या किया है? दे मेड अ डिस्कवरी कंसर्निंग विद एमआरआई। एमआरआई के रिलेटेड जो डिस्कवरी थी इन दोनों ने मिलके की। डू यू नो व्हाट इज एमआरआई? Yes. That is magnetic resonance imaging. That is the imaging technique used to display the internal structure of the body in detail. आपने सुना होगा ना, हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन करवाते, एमआरआई स्कैन करवाते, बस ये एमआरआई है। दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बॉडी की डिटेल में पिक्चर्स को क्लियर करवाता है ये। सो दे मेड द डिस्कवरी रिगार्डिंग एमआरआई एंड दे वर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन में इनको भी क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। थर्ड साइंटिस्ट आ रहा है, 3 साइंटिस्ट है। फर्स्ट हेराल्ड जूर हुसैन, सेकंड फ्रांकोसिस बेरे, और उसको सिनोसिस भी कहते हैं, सिनोसिस भी कहते हैं। थर्ड वन इज लुक मॉन्टेजिनियर। 2008 में जो पहला साइंटिस्ट जो है वो जर्मन है, बाकी के 2 फ्रेंच के हैं। जर्मन कौन है? हेराल्ड जूर हुसैन। बाकी जो है फ्रांसिस बेरे सिनोजी और लुक मॉन्टेजिनियर, फ्रेंच के साइंटिस्ट है। 2008 में दे हैव मेड द डिस्कवरी रिगार्डिंग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एंड सेकंड वन इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस के रिगार्डिंग डिस्कवरी की थी इन दोनों ने, और इन दोनों को भी मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। तीनों को, सॉरी, क्या मिला था? नोबेल प्राइज। फोर्थ साइंटिस्ट जो है ऑब्वियसली हमारा इंडियन है, वेंकटरामन रामकृष्णन। 2009 की बात है। वेंकटरमन रामकृष्णन फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है। इसके साथ दूसरे 2 साइंटिस्ट थे, थॉमस स्केट एंड अडा यूनाथ। थॉमस भाई भी थे उसके साथ और यूनाथ भाई भी थे 2009 में। ये दोनों के दोनों अमेरिकन इजराइल है। इन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के ऊपर रिसर्च किया था। दे मेड द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिगार्डिंग स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम एंड दे अवार्ड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उसको नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है? ये 4 साइंटिस्ट है इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होगी डिस्कवरी, बट नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड अबाउट द डिस्कवरी इन 19th century, राइट? 17 साइंटिस्ट देयर वर 19th century और अप टू 19th century। फिर हम गए 20th century में, राइट, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कितने 9 साइंटिस्ट आए। फिर हम गए 21st century जो अभी चल रही है, जिसमें मैंने इंक्लूड किए 4 साइंटिस्ट। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इस साइंटिस्ट को एक बार याद करने की कोशिश करिए, उनकी डिस्कवरी जो आपने लिखी है, राइट, और आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको अपने पास रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में मिलेंगे अब।